اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندے ایمان لائے اور پھر ان کی اولادوں نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، بچے بھی ایمان والے ہوئے، اللہ فرماتا ہے کل میدان محشر میں، کل قیامت میں، جو دنیا میں اولاد جگر کا ٹکڑا تھیں اور یہ اولادیں اگر صاحب ایمان ہیں تو یہ ایمان کی وساطت وہاں پر بھی کام آئے گی۔ اور کیسے کام آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، کہ ہم کل میدان محشر میں ایمان والے کی اولادوں کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اور کیسے ملائیں گے؟ یہ نہیں کہ اگر بیٹا کم درجے کا ہے، بیٹا اس مقام و مرتبہ میں نہیں پہنچ سکا، اس کی اتنی نیکیاں نہیں ہے کہ جنت کا اعلیٰ درجہ اسے حاصل ہو، باپ بڑا نمازی تھا، پرہیزگار تھا، ایمان میں بڑا پختہ تھا، اس کو جنت کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے۔ اب ایسی صورتحال میں اللہ فرماتا ہے یہ نہیں کہ باپ کا درجہ گھٹا کر ہم بیٹے کو کچھ نیکیوں کا اضافہ کر کے باپ کے درجے میں پہنچائیں گے۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم ان کے عمل سے کچھ کم بھی نہ کریں گے۔ یعنی اگر باپ اونچے درجے پر ہے، اونچے مقام پر ہے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ملا ہے، بیٹا گنہگار تھا ایمان والا، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ گناہوں کا بوجھ بھی اس پر لدا ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کل میدان محشر میں بھی باپ کا وسیلہ کام آئے گا، اور یوں کام آئے گا کہ اس بیٹے کو نچلے درجے سے اٹھا کر اللہ ان کے والدین کی خواہش پہ اسے اونچا درجہ عطا فرما دے گا، ان کے والدین کی خواہش پر انہیں اونچا درجہ عطا فرما دے گا۔ اب مسلمانوں سنو، دیکھو ماں باپ ہمیں کل میدان محشر میں بھی کام آ رہے ہیں، جنت میں بھی کام آ رہے ہیں، کہ اگر ہمارا جنت میں درجہ کم ہے لیکن باپ کی خواہش ہے کہ جس بیٹے کو اپنے نگاہوں سے دیکھ کر میری دنیا میں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، مولا میں جنت میں چاہتا ہوں کہ وہ بیٹا میرے ساتھ رہنے لگے، رب تبارک و تعالی باپ کی اس دعا سے، اس خواہش پر اس بیٹے کا مقام اونچا کر دے گا، اس بیٹے کا مقام بڑھا دے گا۔ تو مسلمانوں کو اب کیا پتا چلا کہ ہمیں ماں باپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، کہ صرف یہ یہاں پر ہی جنت نہیں بلکہ جنت میں بھی تمہیں اونچا مقام دلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس بنا پر مسلمانوں آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سنتے ہیں۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ اگر تم نے ماں باپ کو اپنے خوش کر لیا، اپنے ماں باپ کی رضا تم نے حاصل کر لی، ماں باپ کو تم نے راضی کر لیا، تو یہی ماں باپ تمہارے لیے جنت کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ اور انہی ماں باپ کو اگر تم نے دل دکھایا، انہی کو تم ڈانٹتے رہے، انہی کو تم پریشان کرتے رہے، تو سن لینا ماں باپ کو تکلیف دینا یہ خود حضور کے دل پر تکلیف پہنچانا ہے۔ خود قرآن مقدس نے جس کا حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس حسن سلوک کو چھوڑ کر اگر تم نے ماں باپ پر اپنا منہ بگاڑا، ان کو چلایا یا ان پر بلند آواز سے تم نے آواز نکالی، تو پھر اللہ رب العزت سمجھ لینا اس ناراضگی کے سبب سے سالہ سال تمہیں جہنم میں بھی جلنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس بنا پر حدیث پاک کے مطابق ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، اس لیے ماں باپ جب جنت ہیں تو ایسے کام کرو کہ تمہیں جنت تک لے جائے لائیں، اور دوزخ بھی ماں باپ ہیں، اس بنا پر ان کو ناراض کرو گے پھر تو دوزخ کے طرف جانے کا سامان تو مہیا کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے والدین کا ابھی آپ نے بلوغت میں قدم نہیں رکھا تھا کہ آپ کے والدین کا وصال ہو گیا تھا۔ علماء نے یہاں پر حکمت بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالغ ہونے سے پہلے
आपके वालिदैन इस दुनिया से हालत तौहीद में कैसे इंतकाल फरमा गए, इसमें क्या हिकमत है? तो लिखने वाला लिखता हुआ नजर आता है, हिकमत इसमें यह है कि अगर मेरे हुजूर के वालिदैन जिंदा होते तो आप इतनी अपने वालिदैन की खिदमत फरमाते, इतनी खिदमत फरमाते कि तमाम तो दुनिया में कोई अपने वालिदैन की खिदमत का हक ही नहीं अदा कर सकता था। इस बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को आपके वालिदैन आपके बचपन ही में प्यारे हो गए। क्या मकाम है अल्लाह के बड़े नेक वली, बुजुर्ग वली हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं, सर्दी की रातें थी, मेरी वालिदा ने एक मर्तबा मुझसे पानी तलब किया, पानी मंगाया। सर्दी की रातों में मैं गिलास में पानी लेकर आया, लेकिन जैसे ही पानी लेकर मैं अपने वालिदा के चारपाई के पास पहुंचा, जिस जगह पर वो महवे इस्तराहत थी, जब वहां पर मेरा पहुंचना हुआ तो मैं क्या देखता हूं, मेरी मां की आंख लग गई है। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि जिस मां के कदमों के नीचे रब तबारक व तआला ने जन्नत सजाई है, उस मां के नींद में खलल डाला जाए। मैं वो गिलास पकड़े हुए वहां पर खड़ा रहा, इंतजार करता रहा कब मेरी मां बेदार हो, कब मेरी मां बेदार हो कि मैं उसको ये पानी पेश करूं। इसी इंतजार में सर्दी और ठंड के मारे उस गिलास से कुछ पानी भाप बनकर निकला, जो मेरी उंगलियों पर बर्फ बन गया। वो गिलास मेरी उंगलियों से चिपक गया। कुछ देर के बाद मेरी मां की आंखें खुलती हैं। जब मेरी मां की आंखें खुलती हैं, मैं पानी पेश करता हूं, तो जब मैं अपनी उंगलियां छुड़ाता हूं तो मेरे उंगलियों का आलम यह था कि उंगलियों के साथ साथ मेरी उंगलियों का गोश्त भी उस गिलास से छूट जाता है। इतनी सख्ती के साथ बर्फ जम गई थी, और जब उसका गोश्त वो चमड़ा गिलास के साथ छूटता है, मेरे हाथों से खून जारी हो जाता है। मेरी मां जब ये देखती है, खूब दुआओं से नवाजती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी मां की दुआओं के बरकत से मुझे वलायत अता फरमा दी है। अब सुनो मुसलमानों, अल्लाह के वली हमें यही दर्स देते हैं कि माँ बाप की हमें खिदमत करना है। दुनिया में खिदमत करोगे तो रब तबारक व तआला तुम्हें इस दुनिया से जाने के बाद भी उनकी खिदमत का सिला अता फरमाए। एक सहाबी रसूल एक मर्तबा ऐसी हालत में थे कि अचानक उनकी जबान से माँ के जवाब में आवाज थोड़ी तेज निकल जाती है। एहसास होता है उनको, गमगीन होते, रंजीदा होते हैं कि माँ ने मुझसे कुछ पूछा और जवाब में मेरी आवाज तेज निकल गई। इस बिना पर फौरन आप दो गुलाम आजाद करते हैं इस बात की माफी के लिए कि मैं माँ के पास मेरी जबान से आवाज कैसी तेज निकल गई। लेकिन आज हमारी हालत जार को देखो, हमारी हालत जार को देखो, चाहे मर्दों को लो या औरतों को लो या लड़कियों को लो, बाप तो बाहर रहता है, कम ही उससे जबान लड़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आजकल की लड़कियां, आजकल की औरतें अपनी मां को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझती। बात बात पर उनको टोकना, बात बात पर उनके अक्ल के आगे अपनी अक्ल को दौड़ाना, शरीयत मुस्तफा हमें ये नहीं सिखाती है। शरीयत मुस्तफा तो हमें ये सिखाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मां की इताअत करके रब तबारक व तआला की इताअत करो, यानी मां की भी फरमादी बरदारी करो और मां की फरमा बरदारी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करो। जब यूं करोगे तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें खूब सिला अता फरमाएगा, तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें खूब सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों क्या पता चला कि दुनिया में जो आने का सबब मेरे माँ बाप हैं, उनकी खूब खिदमत करनी चाहिए। कैसी खिदमत करनी चाहिए? बारगाह मुस्तफ़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दहलीज है। एक साहिब आते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसा रास्ता था, ऐसी गर्मी थी कि अगर उस रेगिस्तान में गोश्त के टुकड़े डाले जाते तो उस गर्मी के सबब से गोश्त के टुकड़े भी भुन जाते। ऐसी गर्म हालात में मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर सवार किया है और सवार करने के बाद
6 मील मैं अपने माँ को अपने कंधों पर लेकर चला हूँ। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया कि 6 मील मैं ऐसे गर्म रेगिस्तान में अपनी माँ को मैं अपने कंधों पर लेकर चला हूँ कि जिस रेगिस्तान में अगर गोश्त के टुकड़े डाले जाएं तो वो टुकड़े भी भुनते हुए नजर आए। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, तुम्हारी वलादत के वक्त जो माँ की चीख निकले थी, अभी हो सकता है कि तुमने पहली चीख का भी अदा ना किया हो। तो माँ के एहसानों को कभी उतार नहीं सकते कि कभी हमने इतने रुपए दे दिए या हमने कोई खिदमत कर दी। बचपन में न जाने कितनी गंदगियां धोई हैं, लेकिन वही बुढ़ापे में पहुंचते हैं, मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, ज्यादा बोलने लगते हैं, बीमारी की वजह से जहन काम नहीं करता है, तो औलादें और खुद बेटियां और घर में रहने वाले अफराद उनको नफरत और हकारत की नजर से देखते हैं। नहीं मुसलमानों, शरीयत इस्लामिया हमें हकारत नहीं सिखाती है, बल्कि उनकी अजमत सिखाती है। बल्कि कुरान कहता है, वला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप को उफ भी ना कहो। जब उफ कहना हराम है तो उससे आगे की उनको गाली देना, उनको सताना, उनको तरह तरह से टॉर्चर करना, ये तमाम तर चीजें अपनी माँ बाप के बारे में हराम है। तो मुसलमानों, यकीनन आप इंतकाल के बाद उनके लिए ईसाले सवाब करते हैं, माँ बाप को अपने सवाब पहुंचाते सारे लोग करते हैं, लेकिन मुसलमानों, जहां इंतकाल के बाद माँ बाप के लिए तुम इसाले सवाब करते हो, वही इंतकाल से पहले भी अपने माँ बाप की कदर कर लो। वही इंतकाल से पहले भी अपने माँ बाप के बारे में अच्छे नजरियात रखो। जहां तुम इंतकाल के बाद तीजे 10वें 20वें और 40वें में तरह तरह के फलों का इंतजाम करते हो, तरह तरह के फ्रूट का इंतजाम करते हो, जरा दिल पर हाथ रखकर तुम्हारे माँ बाप जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचे हैं तो उस वक्त भी फलों से उनकी खिदमत कर लो। यकीनन इंतकाल के बाद में इन तमाम तर रसूम में जो आप फल और फ्रूट लाते हैं इस नियत से कि गरीबों में सदका करेंगे, माँ बाप को सवाब पहुंचेगा। यकीनन जहां पर वो सवाब है, वहीं पर उनकी जिंदगी में मोहब्बत से उनको फल पेश करना, मोहब्बत से उनको तमाम तर ग़िज़ाएं खिलाना, ये भी सवाब का काम है, ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो मुसलमानों, हमें ये बातें करनी चाहिए, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना चाहिए। यकीनन इसाले सवाब करना जायज़ हो, क्यों ना जायज़ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा में आते हैं, अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था मदीना शरीफ में और मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था। अब मैं आया हूँ, अपने वालिदा की जानिब से मैं कुछ नेक काम करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, आप इजाजत फरमाएं कुछ नेक काम करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ठीक है, पानी की जरूरत है, तुम अपनी माँ के लिए कुआं खुदवा दो, मुसलमानों के लिए पानी का इंतजाम हो जाएगा। हजरत साद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर जाते हैं, कुआं खुदवाते हैं। कुआं खुदवाने के बाद बारगाह मुस्तफ़ा में आते हैं, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपने माँ के सवाब के लिए कुआं खुदवाया है ताकि लोग उससे पानी पिए और मेरी माँ को उसका सवाब पहुंचता रहे। या रसूल अल्लाह, आप चलकर दुआ फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी की गुजारिश पर जाते हैं, कुएं के पास खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद में इरशाद फरमाते हैं, हादा ले उम्मे साद, ये कुआं साद की माँ के लिए है, ये कुआं साद की माँ के लिए इसाले सवाब है। तो पता चला हम जो इसाले सवाब करते हैं इसमें नाजायज वाली कोई बात नहीं है, इसमें हराम वाली कोई बात नहीं है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद की माँ के लिए जो उन्होंने कुआं खुदवाया था, कुएं पर जाके आपने दुआ फरमाई है, ये कुआं साद की माँ के लिए। तो यकीनन बाद इंतकाल माँ बाप के लिए हमें करना चाहिए, खूब इसाले सवाब करना चाहिए, क्योंकि आला हजरत अजीमुल बरकत ने भी इस बात को आपने जो है हुकूक में से लिखा है कि जहां पर जिंदगी में माँ बाप के कुछ हुकूक होते हैं, वहीं इंतकाल के बाद में भी माँ बाप के कुछ हुकूक हुआ करते हैं। उन हुकूक में से ये है
کہ جب بھی آپ اپنے لیے دعا کریں تو پھر اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعائے مغفرت کیا کریں. اور یقیناً ہم کرتے ہیں. قرآن جب پڑھتے ہیں, نمازوں میں ہم دعا مانگتے ہیں, ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اے مولا تم میری بھی بخشش فرما, ولی والدی اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما. بلکہ مسلمان اپنا تمام تر عمومی طور پر تمام تر مسلمانوں کے لیے دعا مانگتا ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام تر مومنوں کی بھی مولا تبارک تعالیٰ تو بخشش عطا فرما دے. اس بنا پر مسلمانوں ایک حق تو یہ بنتا ہے کہ جہاں اپنے لیے آپ استغفار کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, وہیں پر ماں باپ کی مغفرت کی بھی دعائیں ان کے انتقال کے بعد مانگا کریں. اور جہاں آپ روزہ اللہ رب العزت ہی کے لیے رکھا جاتا ہے, روزہ آپ اللہ رب العزت کے لیے رکھیں, نظر بھی اللہ رب العزت ہی کے لیے مانی جاتی ہے, کسی پیر کے نام کی نظر نہیں ہوتی. مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں, نظر جو ہوتی ہے چاہے روزوں کی نظر ہو چاہے نمازوں کی نظر ہے, نظر یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہوتی ہے اگر وہ اللہ کے لیے نظر مانتا ہے. مثال کے طور پر کسی کا بیٹا بیمار ہے, وہ نظر مان لیتا ہے کہ اگر میرا بیٹا درست ہو گیا تو میں رب تبارک و تعالیٰ کے لیے 3 روزے رکھوں گا, تو پھر اس کو 3 روزے رکھنے اس بندے پر واجب ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہی کے لیے نظر ہوتی ہے. یا میں 20 رکعت رب کے تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز ادا کروں گا, تو اگر اس کا بیٹا درست ہو جاتا ہے تو پھر اس کو 20 رکعت نماز ادا کرنا یہ واجب ہو جاتی ہے. یہ جو نظر ہوتی یہی نظر شرعی ہوتی ہے. لیکن ہماری عوام اہل سنت و جماعت کے ہاں ایک اور نظر ہے, اور یہ نظر صرف یہی نہیں بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس پر بحث فرمائی ہے. جس نظر کو نظر عرفی کہا جاتا ہے وہ نظر کیا ہوتی ہے کہ کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے, وہ کہتا میں نے نظر مان لی ہے کہ میں غوث پاک کے نام کا پتیلا کروں گا. کوئی کہتا میں نے نظر مان لی ہے کہ خواجہ غریب نواز کے نام سے میں فلاں کام کروں گا. مسلمانوں یہ شرعی نظر نہیں ہوتی, اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جن پر نیک کام کی نیت کر لی جائے تو ایسا کام ضرور کرنا چاہیے. اس نظر کو اصطلاح میں نظر عرفی کہا جاتا ہے, وہ محض ایصال ثواب ہوتا ہے کیونکہ نظر جو شرعی ہوتی وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے. ہم عرفاً جو نظر ماننا کہتے ہیں کسی ولی یا بزرگ کی, تو یہ نظر عرفی ہوتی ہے, شرعی نظر سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں. اور اس عرفی نظر کا معنی محض ایصال ثواب ہوتا ہے. آسان لفظوں میں سنو, غوث اعظم کی نظر ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں غوث اعظم کے نام سے ایصال ثواب کروں گا. میرا فلاں کام ہو گیا تو دادا حاتم شاہ کے نام سے میں ایصال ثواب کہوں گا. یہ نظر شرعی نہیں ہوتی, یہ نظر عرفی ہوتی ہے, اور اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا, یا وہیں پر جا کر بھی پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا, بلکہ آپ ان کے نام سے کہیں بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اس بنا پر مسلمانوں ہمیں ان باریک باریک باتوں پر خیال رکھنا چاہیے, ورنہ اللہ رب العزت کے لیے جو نظر مانی جاتی ہے, قرآن فرماتا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ کہ تم اپنی نظروں کو پورا کرو, اس نظر کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. ذکر میں نے چھیڑا تھا, اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بندے جو ایمان لائے پھر ان کی اولادوں نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی, اللہ فرماتا ہے کل ہم ان کی خواہشوں پر ان تمام تر مومنوں کو ان کی اولادوں کے ساتھ لاحق کر دیں گے, ان کی اولادوں کو مومنوں کے ساتھ لاحق کر دیں گے, اور ان کے عمل سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے. تو مسلمانوں یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آج کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن قرآن کی خود آیت کہتی ہے کہ کل شفاعت یہ بھی ہوگی کہ کسی سے نیچے درجے سے اونچا درجہ ادا کرنا. تو بتاؤ جب ماں باپ شفاعت کرتے ہوئے نظر آئے, جب ماں باپ اپنے بیٹوں کو اونچا درجہ عطا کرتے ہوئے آئے, تو ساری کائنات کے روحانی باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے حضور کی شفاعت جو ہوگی وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی, وہ اللہ کے اذن سے ہوگی, اور پھر حضور کے صدقے میں قیامت تک تمام تر مومنین اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے, اولیاء اور بزرگ اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں. آگے بڑھتے ہیں. ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے. ایصال ثواب کا معنی
सवाब पहुंचाना, लेकिन सवाब दुआए मग़फ़िरत ये हर बंदे के लिए नहीं की जा सकती। शरीयत ने इस पर भी हमें पाबंदी रखी है कि आप चाहें, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई गैर मुक़ल्लिद मर गया, मुसलमानों वाला नाम है, फौरन हमारे लोग उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हुए नज़र आते हैं। कोई ऐसा सियासतदान है, न जाने कितने मंदिरों पर उसने पूजा की हो, अपनी सियासत को टमकाने के लिए न जाने उसने कितने तिलक लगाए हों, न जाने कैसे उसने इतने काम किए हों कि जिसके सबब से वो ईमान से निकल गया। न जाने कहते ऐसे मुशायरा पढ़ने वाले होते हैं कि नाम के मुसलमान होते हैं, लेकिन न जाने कैसी कैसी कुफरियात उनके अशार में पाई जाती हैं। तो मुसलमानों, ईसाले सवाब दुआए मग़फ़िरत भी हर बंदे हर बंदी के लिए नहीं होगी, बल्कि ईसाले सवाब भी उसी के लिए होगा कि जो बंदा साहिब ईमान हो, इस दुनिया के साथ, इस दुनिया से ईमान के साथ गया हो। जब ईमान के साथ इस दुनिया से जाएगा तभी उस बंदे को ईसाले सवाब फायदा करेगा, और इस बंदे का भी ईसाले सवाब करना तभी जायज होगा। वरना इस मुल्क के हिंदुस्तान में जिस खित्ते और जिस इलाके में आप जाएंगे, उस खित्ते और आपको इलाके में बहुत दावेदार मिलेंगे कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन जब आप उनको टटोलोगे, अच्छा आप मुसलमान हैं, लेकिन क्या मुसलमान कोई ऐसा भी होता है जो कहता है कि मादल्लाह हुजूर को तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया हो, जिस कुरान में हर एक चीज का बयान हो, उस कुरान में हर चीज का बयान हो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान सिखाया गया हो, और अल्लाह ने खुद उस कुरान में मुतअद्दिद आयात मुबारका में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इत्तिला अलल गैब, इम्बा अलल गैब, और खुद इल्म गैब जो तफसीरों से साबित है वो बयान फरमाया हो, ऐसे नबी के बारे में एक जमाअत तौहीन की इस हद तक गुजरती हुए नजर आए कि हुजूर को तो मादल्ला पीठ पीछे की भी खबर नहीं, पीठ पीछे की भी खबर नहीं। और उसी में एक सफ़े और आगे लिखते हुए नजर आए कि शैतान और मलकुल मौत को, तो शैतान और मलकुल मौत को तो इल्म गैब नस्स क़तई से साबित है, यानी उस पर कुरान और हदीस की दलील मौजूद है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर कोई दलील मौजूद नहीं। और साथ में आगे ये भी कहता है कि हुजूर के लिए फिर इल्म मानना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? बोलो मादल्लाह। ये बराहीन कातिया में खलील अहमद अम्बेडवी जो बज़ाहिर उसकी किताब है, लेकिन हकीकत में रशीद अहमद गंगोही की किताब है, जो बराहीन कातिया में ऐसा अकीदा, ऐसा नजरिया लिखता हुआ नजर आए कि मादल्लाह जो मलकुल मौत और शैतान को जो इल्म हासिल है उस पर तो कतई दलील मौजूद है, यकीनी और पुख्ता दलील मौजूद है, हुजूर के इल्म पर कोई दलील ही नहीं। ऐसा अकीदा रखे, फिर ये कहे कि जो हुजूर के लिए इल्म गैब मानता है वो मुशरिक है। अरे जो अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को शरीक करेगा यकीनन वो मुशरिक हो जाएगा। अरे कैसी तुम्हारी अक्ल पर ताला पड़ा हुआ है कि उसी इल्म को तुम शैतान और मलकुल मौत के लिए नस्स क़तई से मानते हो, तो तुम बिल्कुल मुशरिक नहीं होते। और उसी इल्म को अगर सुन्नी हुजूर के लिए मानता है जिस पर सैकड़ों दलाइल मौजूद है, तो तुम सुन्नियों को मुशरिक बनाते हुए नजर आते हो। तो ऐसे भी ईमान वाले मिलेंगे, और जब ऐसे ईमान वाले मिलेंगे जो बज़ाहिर ऊपर ढोल की तरह तो आपको चमड़ी नजर आएगी और अंदर से उमूरे ईमान कुछ नहीं होगा, तो अगर ऐसों के लिए तुम हाथ उठाकर दुआएं मग़फ़िरत करते हुए नजर आओगे तो समझ लेना तुम्हारे ईमान का खुद जनाजा निकल रहा है। अगर ऐसों के पीछे तुम जनाजा पढ़ते हुए नजर आओगे तो तुम उसका जनाजा नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि ऐसे के अकीदे को जान करके उसके जनाजे को पढ़ना खुद अपने ईमान का जनाजा निकलवाने के मुतरादिफ। इस बिना पर मुसलमानों होशियार आ जाओ, बाज आ जाओ। आज हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, न जाने कहां कहां के कैसे हालात हैं, लेकिन हमारे सामने जो हालात नजर आते हैं कि जिस दुनिया की रंजिश की बिना पर कभी भी हुजूर ने अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लिया, अपनी जात के लिए आपने सबको माफ फरमा दिया। ताइफ वालों ने आप पर पत्थर मरवाए,
खून से आप लहूलुहान हुए, लेकिन फिर भी आपने उनको माफ फरमा दिया। हजरत हिंदा जिन्होंने हुजूर के चचा का कलेजा चबाया, लेकिन हुजूर ने उनको भी माफ फरमा दिया। तमाम को हुजूर ने माफ फरमा दिया, अपनी जात के लिए कभी किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर बात आई शरीयत में तो हुजूर ने काबे के अंदर भी पकड़वा कर ऐसे कि सर को कलम करवाया है। खुद हुजूर ने तलवार उठाई है इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। जिन्होंने दीन मुस्तफा पर हमला किया, हुजूर ने वहां पर सहाबा का लश्कर भी भेजा और खुद आप उस लश्कर में तलवार के साथ शरीक हुए, लेकिन आपने कभी अपने लिए बदला नहीं लिया। लेकिन अल्लाह के दीन के लिए कोई दीन की तौहीन करे, दीन को ललकारे, तो जरूर हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए आप सामने आए। तो मुसलमानों, हम कैसे हो गए हैं कि हम अपने लिए तो हर रिश्ता छोड़ देते हैं। अपने लिए अगर हमारी जाती लड़ाई हो जाए तो हम न जाने कितने ऐसे लोग मिलेंगे जो सगे भाई से भी बोलना पसंद नहीं करते, सगे भाइयों के भी पीछे न जाने कितनी दौलत बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। सगे भाई हो, सगे बहनों, सगे रिश्तेदारों से दुनियावी मफाद के लिए, दुनियावी इज्जत के लिए तो रिश्ता छोड़ देते हैं, लेकिन रसूल के दुश्मनों से उनका रिश्ता नहीं छूटता, रसूल के दुश्मनों से उनका रिश्ता नहीं छोड़ता। हुजूर का ये उसवा मुबारक नहीं है। हुजूर का उसवा मुबारक तो ये है कि अपने दुश्मनों को तो हुजूर माफ फरमा देते थे, लेकिन दीन के दुश्मनों को आप माफ नहीं फरमाते थे। आपको भी उसवा अपनाना पड़ेगा कि अपने जो जाती दुश्मन हो, शरीयत भी कहती है वल काज़िबीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास, कि जो मुसलमान होता है वो गुस्से को पी जाने वाला होता है, लोगों को माफ कर देने वाला होता है, लेकिन जो दुश्मन रसूल होता है उस पर सहाबा इस आयत मुबारका के मिस्दाक बनकर अशिद्दु अलल कुफ़्फा पर, दुश्मन अहमद पर शिद्दत करता हुआ नजर आता। इस बिना पर मुसलमानों, जो हुजूर का दुश्मन हो उस पर शिद्दत करने का हुक्म है, और अपनों से अगर जाती कोई रंजिश हो गई है तो उस रंजिश को खत्म करके भाई से मिलने का हुक्म है, क्योंकि शरीयत हमें इजाजत नहीं देती कि दो मुसलमान आपस में एक दूसरे से बिछड़े हुए रहे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हम तमाम को तसल्लुफ फी दीन अता फरमाए, दीन की सही समझ अता फरमाए, बद अकीदों से और बद अकीदगी से हमें महफूज व मामून फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।